Hi guys, welcome back to my channel. I am Mohini and I make videos to fashion, travel, lifestyle and a lot more. Today's video was much requested on Instagram. Every time I post a full OOTD picture, you always ask me where are those shoes from, where are those footwear from. So I feel, and also I'm very proud about my collection. So I thought why not share my footwear collection with you guys. I just counted before shooting this video. I just took out all of the shoes and I just counted them. So I have around 51 pair of footwear. So there are a lot of footwear, but ये मैंने एक दिन में इकट्ठे नहीं किए हैं. ये they are collected over a span of time. I guess the most old इनमें से जो heels है मेरे पास, मतलब overall में से वो I guess 4 years पुरानी है. तो ये 4-5 साल की collection आप इसको easily count कर सकते हो. उससे ज़्यादा पुराने नहीं हैं, but ये एक दिन में भी नहीं बने. So I am not a person who only buys like only high end. So I have a mix of all of those. I have a lot of street picks. A lot of them are from Street Style Store, which is again very affordable. A lot of them are from Westside, which is again very affordable. And I also have a lot of Skechers, and my heels are usually branded only, so we have a lot of those as well. So I also have the most expensive shoes, which are from Charles & Keith. So in this video I'm going to show you all of my footwears, and I have also categorized them into 6 categories. So the first part is the flats. I have around 11 flat footwears. The second part are the juttis. I have around 10 juttis. The third thing is the belly. I have 8 belly. The fourth category is shoes. I have around 9 shoes. The fifth category is boots. I have 3 pair of boots. That's the least amount of in any category. And then come the heels. I have 10 pair of heels. So without wasting any time, let's get started. And for sure we're going to start with the flats first. Starting with the flats, first are these ones. So these are from H&M. I bought them like 2 years ago while I was in Delhi. So इन shoes की story है कि मैं mall गई थी और मेरे पैर बहुत ज़्यादा कट रहे थे, तो I just wanted to get out of my shoes and wear something else. So I bought these. The next pair is from a street pick, and this is from Colaba Causeway in Bombay. If you have seen my Bombay haul, you already know. I have a similar bow ones. These are from Street Style Store. ये मैंने बहुत पहले खरीदे थे और ये बहुत ज़्यादा trending थे Instagram. Pair is again from Street Style Store. These are one of my favorites. ये मैंने बहुत ज़्यादा डाले और ये अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में. ये बहुत सारे कलर्स के साथ जाते हैं और black तो मतलब best. The next pair is from Street Style Store again. These are also something with bow, and इस पे बहुत सुंदर brown और white lines है. ये बहुत ज़्यादा नहीं जाते, but ये जिन कपड़ों के साथ जाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं. While we are talking about Street Style Store, this is my favorite pair from them. These are these sandals with some studs on it, और ये ऐसे tie up है. These are very comfortable. ये मैंने अपने कॉलेज के 3rd year में इतने ज़्यादा डाले. I have no clue. इनकी ऐसी हालत हो गई है कि मैं इसको 2-3 बार मोची से ठीक भी करा चुकी हूँ और मेरी मम्मा कहते हैं फेंक दे, but no, I cannot get rid of these. I just love these. The next ones are also again from Street Style Store, और ये भी उनका बहुत ही ट्रेंडिंग चप्पल है. ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पहनी है और ये बहुत सुंदर लगती है इंडियन वेयर के साथ. इनफैक्ट इंडो वेस्टर्न के साथ बहुत प्यारी है और ये अभी भी अवेलेबल है. तो इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दिस, यू शुड. The next pair of footwears are these. These are from a shop in Chandigarh only, Sector 17. So these were the basic golden kind of slipper. Like I told you, I have a lot of footwears from Westside, but I am हैरान कि चप्पल सिर्फ एक है. So this is my white basic चप्पल with some sunflowers on it. और ये चप्पल के लिए भी मुझे इतने messages आते हैं. I just love this चप्पल, और summers में तो इतनी perfectly इतने कपड़ों के साथ जाती है. I just love this चप्पल. ये आज वाले outfit के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी. Next are the most expensive चप्पल basically, और ये है these blue ones. These are from Catwalk, and they have very nice what will you call them, some studs maybe, and these are very pretty. ये बहुत चीज़ों से आ जाती है, Indian, Westerns, everything, और इतनी सुंदर लगती हैं और I love them. The last pair of chappals are these grey ones. ये मैंने पुणे से खरीदी थी जब मैं पुणे गई थी. ये भी आपने शायद हॉल में देखी होंगी. And these are also very nice, basic summers में पहनने के लिए. बहुत ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, but I love these. Okay, so that was it for the slippers, and now let's move on to the juttis part. So for juttis, let us start with the ones
विच आर हियर। दीज आर द मैजेंटा बेसिक जुत्तीज। ये मैंने अभी तक एक बार भी नहीं डाली हैं, ये मैंने ली थी बट मेरे पास कुछ मैजेंटा इंडियन वेयर अभी तक मिला नहीं है मुझे, तो आई एम थिंकिंग टू गेट अ मैजेंटा सूट टू वेयर दिस जुत्तीज। सो लेट्स सी। ये जुत्तीज बहुत सुंदर थी, इस पर बहुत सुंदर काम हुआ है, तो आई जस्ट बॉट दीज। नेक्स्ट जुत्तीज आर माई फेवरेट। ये मेरी फेवरेट जुत्ती है अभी तक, और ये ऐसे इस पे ऐसे काम हुआ है और ये पीछे से ऐसे, आई जस्ट लव दिस जुत्तीज। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो देन यू मस्ट हैव सीन द वेडिंग पिक्चर्स ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग। उसमें मेरा येलो लहंगा था तो मैंने ये जुत्ती ली थी, बट then I thought let's wear shoes because shoes जुत्ती से भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो I wore shoes। बट ये फिर जुत्तीज मैंने हल्दी पे डाली थी क्योंकि वो भी येलो आउटफिट था, तो these are my favorite जुत्तीज। अब हम मेरे फेवरेट जुत्तीज की बात कर ही रहे हैं, तो these are also one of my favorite जुत्तीज। इस पर बहुत सुंदर पीच और मरून कलर की डिटेलिंग है, और मेजॉरिटी जुत्तीज आई गेस मैंने अपने भाई की शादी पे ली थी क्योंकि इंडियन वेयर तो बहुत सारा था, तो आई नीड अ न्यू फुटवेयर। ये मैंने एक सूट के साथ डाली थी, वो लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी, और ये जुत्तीज वैसे भी बहुत सुंदर हैं। आई गेस आई एम गोइंग टू टेक द मोस्ट यूज आउट ऑफ दीज वंस एट लीस्ट। और एक और बहुत सुंदर जुत्ती है, वो ये है, इस बहुत सुंदर काम हुआ हुआ है। जस्ट लव 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 दीज जुत्तीज। ये बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई। आई बॉटल ग्रीन कलर, लव इट, टोटली लव दी। और गोल्डन जुत्तीज ये भी अभी रिसेंट परचेज है, ये भी मैंने शादी पे ही ली थी अपने भाई की, और ये मेरी एक ड्रेस थी जागो पे ग्रीन कलर की, उसमें गोल्डन काम था तो मैंने इसलिए ली थी। और गोल्डन जुत्ती है तो ये बहुत इजीली बहुत सारे इंडियन वेयर के साथ जाती है क्योंकि गोल्डन काम तो मेजॉरिटी सब में होता है। एक और इंडियन वेयर जुत्ती वो है ये वाइट कलर की, ये मैंने अमृतसर से ली थी। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि कौन सी जुत्ती ली थी अमृतसर व्लॉग में, तो वो गाइस ये वाली जुत्ती है, और ये मैंने अमृतसर से ली थी। काफ़ी सस्ती जुत्तियाँ मिलती हैं वहाँ पे, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई दीज। और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है, इसका सोल काफ़ी अच्छा है, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थी। आई गेस 700 की थी, तो आई रियली लाइक दिस। और इस पर काफ़ी काम हुआ हुआ है 700 के हिसाब से, तो और ये इंडियन वेयर के साथ भी जाती है और वेस्टर्न के साथ भी, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। अब एक जुत्ती मेरे पास जो इंडो वेस्टर्न है वो ये है, ये वेस्टर्न के साथ भी जाती है और ये इंडियन के साथ भी जाती है। इस पर बहुत सुंदर काम हुआ हुआ है। ये जुत्ती तो इतनी ट्रेंडिंग थी, इतने लोगों के पास है डिफरेंट कलर्स में। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु ओन्स दिस जुत्ती, दिस डिज़ाइन। ये बहुत ट्रेंडिंग था, बट ये मेरा वाला पैरेट कलर किसी के पास नहीं है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। बट द पैरेट कलर, बिकॉज ऑफ द पैरेट कलर मैं इसको बहुत नहीं डाल पाती क्योंकि बहुत चीज़ों के साथ नहीं जाती। एक मेरे पास ये फुटवेयर्स हैं, इनको मैं जुत्ती कंसिडर करूँगी क्योंकि इनको मैं जुत्ती कंसिडर करूँगी तो ये भी बहुत कलरफुल और बहुत प्यारे फुटवेयर्स हैं। ये पीछे से इनके स्ट्रैप है, ये मैंने यहाँ चंडीगढ़ में कालाग्राम में एग्जीबिशन लगती है वहाँ से लिए थे, और ये भी मैंने काफ़ी पहने, बहुत कलरफुल हैं। मेरी मम्मा कहती हैं इनको फेंक दे, बट मेरे को बहुत पसंद है, बहुत कलरफुल है तो बहुत कपड़ों के साथ जाते हैं, तो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ माई गुड शूज़। द नेक्स्ट जुत्तीज आई हैव आर दीज रेड एंड ब्लू वंस, और ये बहुत प्यारी लगती हैं। ये सुरवाना नाम से एक ब्रांड है, उनकी है। ये मेरे को कोलैबोरेशन में मिली थी, ये मैंने नहीं खरीदी, बट ये बहुत सुंदर जुत्तीज़ हैं। ऑल्सो इसके यहाँ पे टाई अप भी था जैसे ग्लैडिएटर्स में होता है, तो ये दैट वाज इवन बेटर। मैंने उसको 1-2 बार डाला है, यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल दूँगी, आप लोग देखो कितनी प्यारी लग रही है ये जुत्ती। और ये बहुत सुंदर जुत्ती, और उनके पास और भी बहुत सारे डिज़ाइन है, तो यू शुड गो एंड वॉच देयर कलेक्शन। The next जुत्ती which I'm going to show you is my first ever जुत्ती. So these are these blue ones. तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है गार्गी, शी लव्स वेयरिंग जुत्तीज। उसके पास बहुत सारी जुत्तीज, अगर आपको लग रहा है मेरे पास ज़्यादा है तो उसके पास डबल या ट्रिपल होंगी। तो उसको जुत्तीज का बहुत शौक है, तो वो पहनती थी। तो ये हम एक बार पटियाला गए थे तो मैंने वहाँ से लिए हैं, तो वो वहाँ से उसने 3-4 पेयर्स लिए। शी वाज लाइक ले ले। तब तक मैंने कभी जुत्तीज नहीं डाली थी, तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे लेनी है कि नहीं लेनी। मैंने सोचा चलो ब्लू है, डेनिम है, मैं ले लेती हूँ, अच्छी लगेंगी, तो मैंने ये ले ली। और गाइस उसके बाद है नो टर्निंग बैक। इसके बाद मैं इतनी जुत्तियाँ खरीद चुकी हूँ, यू हैव सीन ऑल ऑफ दोज, एंड ये मैंने बहुत डाली है। ये तो स्पेशली डेनिम जैसी दिखती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के साथ जाती हैं। लाइक इंडियन वेयर के साथ तो जाएंगी क्योंकि जुत्ती है, वेस्टर्न वेयर, जीन्स, टॉप, ड्रेसेस, सो लव दीज वंस। सो नाउ लेट्स कम टू बैलेरिनाज, एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं सबसे ज़्यादा डाली है मैंने इनमें से,
विच आर दीज वंस. सो दीज आर वेरी बेसिक सिल्वर एंड इसमें बहुत छोटी सी हील है, बट ये मैं इसको हील्स में काउंट नहीं करूँगी. तो ये मैंने बहुत डाली है कॉलेज और इतनी वर्सेटाइल है, बहुत सारी चीज़ों से जाती है. तो वन ऑफ माई फेवरेट्स वन एज वेल. ऑल्सो इसका सोल निकल गया था, मैंने दोबारा लगवाया है नीचे इसको फ्लैट करने के लिए बिकॉज आई रियली लव देम. नेक्स्ट बेलीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट अमंगस्ट ऑल दीज. सो दीज आर दीज बेलीज. इनको हम क्या कहते थे, बो वाले, कुछ इनका स्पेसिफिक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा. कमेंट्स में बताना अगर आपको याद है तो. तो ये बेसिक ब्लू बेलीज हैं और ये ब्लू का ऑब्सेशन तो मेरा हमेशा से ही रहा है. तो फिर ये ब्लू बेसिक बेलीज. अब जो नेक्स्ट है वो सबसे डिफरेंट बेलीज हैं विच आर दीज वंस. दीज आर फ्रॉम कैटवॉक और ये इस पर बहुत अच्छे ये गोल्डन स्टार्स लगे हुए हैं एंड दे आर वेरी पॉइंटेड. तो अगर कोई गलती से नंगे पैर मेरे पैर के ऊपर पैर रख दे जो मैंने ये बेली डाली हो, उसका पैर तो गया. सो दीज आर वेरी प्रिटी एंड दे लुक वेरी क्लासी. अब एक ब्लैक बेसिक बेली तो सबके पास होनी ही चाहिए. दीज आर फ्रॉम बाटा एंड बाटा के बहुत बचपन में बहुत बाटा की फुटवेयर्स डालती थी एंड ये ब्लैक बेलीज बहुत सुंदर है. तो बेसिक ब्लैक बेलीज फ्रॉम बाटा. मेरे पास ये भी हैं. इनको मेरे को किस कैटेगरी में डालना चाहिए, आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने इनको बेलीज की कैटेगरी में डाल दिया. ये इंडो वेस्टर्न चल जाते हैं. ये अगेन मैंने एक एग्जीबिशन से लिए थे. ये इंडो वेस्टर्न के साथ, वेस्टर्न के साथ, इंडियन वेयर के साथ भी चल जाते हैं. अब जो नेक्स्ट 2-3 फुटवेयर हैं वो सारे वेस्ट साइड से हैं. तो दीज आर द फर्स्ट वन. दीज आर वेरी नाइस, रेड एंड ब्लैक प्लेड एंड ये पीछे से क्लोज नहीं है बट दीज लुक वेरी प्रिटी एंड ये बहुत कंफर्टेबल है. वेस्ट साइड के फुटवेयर्स ओवरऑल भी अफोर्डेबल है और बहुत सुंदर है. तो गो डू ट्राई वेस्ट साइड वंस फॉर योर कंसिडरिंग योर फुटवेयर. एक और वेस्ट साइड के फुटवेयर्स ये हैं ब्लू कलर के. इन पर बहुत सुंदर ये लेस लगी हुई है और ये बहुत प्यारे हैं. इनके यहाँ पे वो भी है टाई अप. मैं इसको ज़्यादा टाई अप के साथ नहीं पहनती तो वो ऐसे ही हैं बट आई रियली लाइक दीज एंड बेसिक अगेन. तो वेस्ट साइड की जो सबसे रीसेंट परचेज है वो हैं ये सिल्वर बेलीज. यूजुअली मेरे पास पार्टी वेयर फुटवेयर्स में अगर जैसे पार्टीज़ पे जाना है रात को, डीजे पार्टीज़ काइंड्स, उनमें हमेशा मेरे पास हील्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लैट से डालने का मन होता है बट होते नहीं. तो फिर आई गॉट दीज वंस. ये बहुत ही सुंदर हैं और ये पार्टीज़ के लिए परफेक्ट हैं. तो आप जितना मर्जी डांस करो और ख़राब नहीं होंगे और मतलब आपके पैर नहीं दर्द होंगे और ये बहुत सुंदर भी हैं. द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ गोइंग टू बी शूज़. तो शूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कंफर्ट पहले देखते हो, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबल फुटवेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सारे शूज़ हैं. तो द फर्स्ट वन आर द ओल्डेस्ट वन. दीज आर दीज गोल्डन बेसिक पेयर्स और ये गोल्डन काफ़ी चीज़ों के साथ चले जाते हैं. तो दीज आर फ्रॉम वेस्ट. आर दीज वाइट वंस. दीज आर फ्रॉम वेरोमोडा और ये बहुत सुंदर इसकी डिटेलिंग है. ये इसका जिप है, यहाँ पे हाफ बंद होती है. ये वैसे तो पूरी हो जाती है बट पहनने के बाद हाफ ही होती है. एंड ये भी बहुत सुंदर और वेरी नाइस स्टर्डी शूज़ हैं, बहुत ही अच्छे. वेरोमोडा के पास भी गुड कलेक्शन है फुटवेयर्स की. वन वाइट स्नीकर्स फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर, बेसिक वाइट गोल्डन और ये भी काफ़ी हील्ड हैं, चंकी से हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं पहनने के बाद. एंड या स्ट्रीट स्टाइल स्टोर. मेरे पास स्ट्रीट स्टाइल स्टोर के और स्नीकर्स हैं, वो हैं ये ब्लैक वाले और इस पर अगर आप ध्यान से देखो इसके ना फ्लिप है ये सीक्वेंस, इधर से सिल्वर इधर से ब्लैक. ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाए, ये मैंने उनके दिल्ली वाले स्टोर से लिए थे. कंपैरेटिवली ऑनलाइन ये सस्ते हैं तो स्टोर से ना खरीद के आप उनके ऑनलाइन ही मंगाना. आई हैव वन मोर ब्लैक शूज़ एंड दीज आर दीज ऑक्सफर्ड्स. ये मैंने यहीं से लोकल परचेज किए थे. दृश नाम से एक ब्रांड है, लांटे पे भी है उनका शोरूम, तो मैंने वहाँ से लिए थे. एंड ये काफ़ी नाइस और ये बहुत गुड क्वालिटी है, बिल्कुल भी सस्ते नहीं थे, ये महंगे भी थे बट ये बहुत ही गुड क्वालिटी है. एंड ये मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इनको यूज़ करते हुए बट ये स्टिल काफ़ी गुड क्वालिटी में है. तो अब मैं आपको अपने सबसे महंगे जूते दिखाने वाली हूँ. सबसे महंगे मतलब फर्स्ट परचेज ये हैं मेरे स्केचर्स के गो वॉक और ये मैंने इतने डाले हैं ये वेस्टर्न्स के साथ और वॉकिंग के लिए इतने अच्छे, इतने कंफर्टेबल शूज़ हैं. मैं जब नेपाल गई थी मैं सिर्फ एक ये शूज़ लेके गई थी, सिर्फ एक, और मैंने पूरे ट्रिप पे कोई और जूता नहीं पहना था. एंड दीज आर वेरी फ्रिकिंग कंफर्टेबल. स्केचर्स, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई वेयरिंग स्केचर्स. और ये थोड़े डार्क कलर के थे तो फिर मैंने अपने भाई की शादी में सोचा था मैं स्केचर्स के शूज़ डालूंगी. पहले मैंने सोचा मैं ये डाल लेती हूँ बट ये थोड़े डार्क थे तो इसलिए मैंने एक लाइट कलर के स्केचर्स के शूज़ लिए हैं. तो फिर मैंने ये वाइट कलर के शूज़ लिए और फिर मैंने ये पहने थे वेडिंग पे. इफ़ यू हैव सीन द वेडिंग पिक्चर्स ऑन माई इंस्टाग्राम यू मस्ट हैव सीन कि मैंने शूज़ डाले थे और मैंने ये शूज़ डाले थे. ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसकी ये जो
पिंक और ब्लू सी डिटेलिंग है, आगे फ्रंट पे भी है, तो ये बहुत सुंदर लगता है पहने हुए, बहुत ही नाइस क्लासी चीज़ लगती है। और स्केचर्स है तो बहुत कंफर्टेबल है, और ये मैंने अपने भाई की शादी पे लिया था। एक और बेसिक शूज़ जो मेरे पास हैं, ये हैं मेरे डिकैथलॉन के रनिंग शूज़, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको भी मेरे को 2-3 साल हो गए लिए हुए, बट दीज आर वेरी कंफर्टेबल। एंड डिकैथलॉन के शूज़ बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट फॉर द कम्फर्ट यू गेट दे आर वेरी वर्थ द प्राइस। तो डू ट्राई डिकैथलॉन के शूज़ अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किए। लास्ट shoes are these are one of my favorites again, these are very chunky। ये बहुत सारे, ये Balenciaga की कॉपी है, और ये बहुत ब्रांड्स पे आए थे। ये Zara पे भी अवेलेबल है, Balenciaga के तो आते ही हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स पे अवेलेबल है, पर मैंने लिए हैं ये वेस्ट साइड से। और गाइज ये आई गेस आए थे 1200 या 1300 के वेस्ट साइड से, और कंपैरेटिवली ये सारी जगह 4,000 के हैं। एंड आई वाज सो हैप्पी टू बाय दिस, और ये मैंने इतने डाले हैं, आई एम जस्ट, ये मैंने बहुत ज़्यादा डाले ये, और ये बहुत सुंदर लगते हैं शूज़ के बाद नेक्स्ट हम आते हैं बूट्स पे। मेरे पास 3 पेयर्स हैं बूट्स के, और तीनों स्ट्रीट स्टाइल स्टोर के हैं, और 2 तो बहुत ही मैंने 2 सेम फुटवेयर 2 डिफरेंट कलर्स में खरीदे थे, रेड और वाइट, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी एंड काफ़ी लोगों ने उसे लाइक किया था। तो ये मैंने 2 खरीदे, और ये दोनों ही मैंने इतने डाले हैं ना, अंत नहीं है जिसका। एंड ये आई गेस उस पर थे 1200 के शायद दोनों थे, तो वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्टाइलिश, वेरी एजी, लव दीज। नेक्स्ट बूट्स आ रहा है बेसिक ब्लैक बूट्स। ये भी मैंने बहुत डाले हैं, ये ना मेजॉरिटी मैंने लहंगों के साथ डाले हैं। मतलब लहंगों के नीचे आपको हील भी मिल जाती है इससे, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल हील है, और ये दिखते हैं नहीं, तो फिर मैंने ये लास्ट सीज़न तो वेडिंग सीजन में बहुत ज़्यादा डाले थे। और ये वेस्टर्न के साथ इतने अच्छे लगते हैं, ड्रेसेस के साथ डाल लो, जीन्स के साथ डाल लो, जिस मर्जी के साथ डालो। वेरी नाइस बेसिक ब्लैक बूट्स एंड आई लव दैट। तो अब सिर्फ एक कैटेगरी रह गई है, जो कि है हील्स। इसमें हम शुरू करेंगे सबसे छोटी हील्स है, विच आर दीज किटन हील्स। ये मैंने वेस्ट साइड से ली हैं, बेसिक ब्लैक के आगे यहाँ पे एक बो बनी हुई है, विच लुक्स वेरी नाइस, और ये बहुत ही वर्सेटाइल पीस है, बहुत सारी चीज़ों के साथ जाता है, और ब्लैक है तो इवन बेस्ट। द नेक्स्ट हील्स आर फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर, और ये है उनकी ये बेसिक ब्लू, क्या कहेंगे इसको, जिगजैग नो और मे बी आई डोंट नो। सो दीज आर बेसिक ब्लू हील्स, और ये भी मैंने काफ़ी डाली हैं। वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, वेरी ब्लू है तो डेनिम से साथ बहुत चीज़ जाती हैं, तो दे लुक वेरी नाइस। The next pair of heels are these ones. These are again from street style store, और ये इसका एक बेसिक ब्लॉक हील है। ब्लॉक हील्स डेफिनेटली द मोस्ट कंफर्टेबल होती हैं, और ये ऐसे इसका यहाँ पे टाई अप है। ये भी मैंने बहुत डाली हैं, और बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं इसके ऊपर, तो ये भी मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से ही ली हैं। The next heels are a basic न्यूट्रल टोन्ड हील्स, एंड इसमें बेबी पिंक, बेबी ब्लू, बेज कलर है, और ये ब्लॉक हील्स है, और ये मैंने आजियो से ली थी, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट, और मतलब इतनी हाइट में इतनी कंफर्ट किसी फुटवेयर में नहीं है, तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल हील्स आई ओन। आई हैव वन मोर फ्रॉम आजियो, दीज आर दीज वंस, इस पर गोल्डन स्ट्रैप है। एज यू कैन सी बाय द सोल, मैंने ये शायद ही 2 बार भी डाली हैं, पर इसकी हील बहुत सुंदर है, पर बहुत हैवी है, और प्लस इसके ना यहाँ पे ग्लैडिएटर्स की तरह इसकी टाई अप्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि टाई अप है, और तो इसका हील का सारा वेट जब मैं पहनती हूँ इन स्ट्रिंग्स पर जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग्स नीचे चल जाता है, तो ये बहुत अनकम्फर्टेबल है, और उनको बार बार टाई करना इज़ अ टास्क। बट आई थिंक आई विल स्टार्ट वेयरिंग दीज दिस समर मे बी। तो ये बहुत सुंदर लगती हैं, बट थोड़ी अनकम्फर्टेबल है, इसलिए मैं नहीं डालती। द नेक्स्ट आर बेसिक गोल्डन हील, गोल्डन पेंसिल हील्स। इनके यहाँ पे डबल स्ट्रैप है टांगने के लिए, बेसिक आगे की है। ये मैंने कार्टन लंदन से ली थी, और ये मैंने उस वीडियो में भी थी, माई ब्रदर गेसेस द प्राइस ऑफ माई फुटवेयर, सो गो वॉच दैट वीडियो, मैं यहाँ पे ऊपर लिंक कर दूँगी। तो बेसिक गोल्डन बहुत चीज़ों से जाती हैं, बट इस पर भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, बहुत ही पेंसिल है, और इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ, बहुत अनकम्फर्टेबल है, बट बहुत सुंदर लगती है। अनकम्फर्टेबल हील्स की बात कर ही रहे हैं, तो ये कैसे पीछे नहीं। दीज आर फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर, द ओनली फुटवेयर फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर। इसका बहुत सुंदर आगे से पॉइंटेड है, और ये भी काफ़ी लंबी हील है, और इसके सेम वही गोल्डन जैसे आगे 2 स्ट्रैप्स हैं, बट अगेन
वेरी प्रिटी बट वेरी अनकम्फर्टेबल। तो ये तो मैंने गोल्डन तो फिर बहुत ज़्यादा जाती है, तो मैंने 3-4 बार 6 बार डाली होंगी, ये मैंने सिर्फ एक बार डाली हैं, बट आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं इनको इस बार थोड़ा और डालूंगी। द नेक्स्ट हील्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस, और ये हैं ब्लैक बेसिक हील्स, और ये हैं चार्ल्स एंड कीथ की। ये मैंने अपने कज़न की वेडिंग में ली थी, मेरे ताया जी के बेटे की वेडिंग में, और ये बहुत सुंदर है और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। तो इन पे मैंने पैसे खर्चे, मुझे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं लगता, क्योंकि मैंने काफ़ी डाली हैं हील। ये सबसे हाई हील है, इससे ज़्यादा हाई हील नहीं है मेरे पास कोई, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसे पहन के बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने 6 इंच की हील्स डाली हैं। तो आई रियली लाइक दीज एंड दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस इन माई क्लोसेट। कम टू द हील्स ऑन द रैक। तो ये है मेरी बेसिक न्यूड हील्स, जो कि बेसिक है, बहुत चीज़ों के साथ जाती हैं। मैंने कंफर्ट प्लस से ली थी, यहाँ लैंड मॉल में, यहाँ पे एक शोरूम है, और ये बेसिक ज़्यादा हाइट भी नहीं है, और ये बहुत सुंदर लगती है, और ये बहुत चीज़ों के साथ जाती है। तो वन ऑफ माई फेवरेट्स अगैन। एंड दीज आर द लास्ट वन, दीज आर बेसिक बेसिक नहीं कहेंगे इनको, ब्लैक हील्स, और ये बहुत ही सुंदर है। इसकी यहाँ पे आप देखो रहे हो मिरर डिटेलिंग है, इतना सुंदर ब्रोकेड का फैब्रिक लगा हुआ है फ्रंट पे, और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं, काफ़ी हाई हैं। ये मैंने आजियो से लिए हैं, और ये मैंने काफ़ी डाली हैं, और ये मैं अभी भी बहुत डालती हूँ। तो वन ऑफ माई फेवरेट्स अगैन। Okay guys, that was it for my shoe collection. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe. Also, I have a huge variety of bags. So most probably next collection bags की होने वाली है. So stay tuned for that. And if you liked it, don't forget to like, share and subscribe. And please subscribe so that we can grow our channel. So yeah, thank you.